Hi friends, welcome to Cricket Caviar. And Afghanistan is going to play against England at Lahore today. And this group has become very interesting, guys. जो कल एक वॉश आउट हुआ है, तो अभी बहुत सारे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन ओपन अप हो चुके हैं। अगर इंग्लैंड आज का मैच जीत जाता है तो इंग्लैंड एंड साउथ अफ्रीका का जो मैच होगा उसके बाद उसमें साउथ अफ्रीका काफी प्रेशर में रहेगी बिकॉज वी हैव सीन दे डू मेक मिस्टेक्स इन अ नॉकआउट गेम एंड थिंग्स हैव बिकम वेरी ड्रामेटिक इन ग्रुप बी। मेरे साथ जुड़े हैं कुणाल एंड आकाश. So we'll talk about the match today, guys. जिसमें लाहौर is the most high scoring ground सबसे पहले तो. So again, right off the bat, like I think this is an advantage for team like Afghanistan, right? So yeah, let me know your thoughts. आई डोंट थिंक सो। आई डोंट थिंक सो यार, जहां भी हाई स्कोरिंग ग्राउंड है अफगानिस्तान के लिए वहां पे एडवांटेज है ही नहीं यार, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि वो उस माइंडसेट से जाते ही नहीं है। Very उनका एक good. टेम्पलेट है, वो उसी में खेलते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ अफगानिस्तान उसी टेम्पलेट में ही फंस गया है वो। तो अफगानिस्तान के लिए सबसे अच्छा ग्राउंड मैं बोलूंगा कि जिसमें भाई एकदम खुद के रन नहीं बन पा रहे हैं। जो जो हाई स्कोरिंग ग्राउंड है उसमें तो यार तुमको फ्री फ्लोइंग खेलना है, रन बनाना है, वो नहीं खेलती, वो टीम ऐसे है ही नहीं। Hmm. I agree with I agree with Akash here. मतलब if you look at England के पास बहुत सारे batsmen हैं. They have Livingston or players like even Butler who can hit it out of the park. Make 300, 350 runs. Or and they even have players like Root who can actually play through 50 overs and chase a big total. लेकिन हाँ, राजस्थान के पास ऐसा कुछ नहीं है. True. So probably And it's that's the advantage reason England why already today. There's a reason why I kept Root and Rashid Khan today because even though both of the teams have a lot of talent, they're losing matches, so many matches. Like England has lost 8 of their 9 last matches, 7 in India, then the last one, and Afghanistan also had a very poor start. So I think they will go back to their, old heroes, who have done served a lot for their countries. So Afghanistan definitely Rashid Khan's bowling is very important for them, and at the same time, for England, Root is important because he can build partnerships while other batsmen lack that skill. And Akash, I honestly feel Phil Salt should be dropped at this stage. Like, he hasn't done anything in the last few many matches. So again, I don't know why England is carrying him like a burden. यार पता नहीं यार, मेरे को ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि बटलर को थोड़ा ऊपर आना चाहिए। 100% man, because you don't have that Johnny Bairstow guy, हाँ। and so Butler should have come. Like experience नहीं है top of the order में. और दूसरा चीज यार, इंग्लैंड का ना, मतलब आई थिंक इंग्लैंड का वो जो लॉस का जो सीक्वेंस बन गया है ना, Hmm. तो उनका एक लॉस का सीक्वेंस बन गया है और उनको पहले उससे बाहर निकलना है। तो Yes. अफगानिस्तान के पास यही है कि भाई अफगानिस्तान आज इतना पॉजिटिव माइंडसेट से खेले कि मतलब मेरे को नहीं फर्क पड़ता इस मैच में क्या होगा, लेकिन मैं तो आके आज बहुत स्कोर करूंगा। Yeah. उस पॉजिटिव माइंडसेट में उतरना चाहिए, क्योंकि यार उनके पास दे हैव नथिंग टू लूज, दे आर दैट काइंड ऑफ अ साइड, दे हैव नथिंग टू लूज। वो कुछ भी अच्छा करते हैं तो दैट इज बीइंग प्रेज्ड, इतना सपोर्ट आता है। और वो यूके और अफगानिस्तान का यार वो पॉलिटिकल चीज, मेरे को एक्चुअली मैंने सर्च किया तो बेसिकली ऐसा था कि टूर्नामेंट के पहले यूके के पॉलिटिशियंस ने बोला था कि हमको अफगानिस्तान के साथ मैच नहीं खेलना चाहिए, दैट इज द Damn. पॉलिटिकल एंगल या। Shikhar, do you know more So about that political yeah, angle? And yeah, do you yeah. think that So will fire up 100, Afghanistan? yeah, 160 Labour Party MPs have actually, protesting. They are protesting against this game because of the. I think Shikhar freeze हो गया है. But that is very Yeah, interesting. we lost it. हमें जिस रिसेंटली पता चला है पॉलिटिकल एंगल के बारे में. क्विक रिव्यू कर लेते हैं तो ड्रीम 11 में मनीषा इज एट And, टॉप. या शिखर, या गो हेड. yeah, so 160 Labour Party MPs have actually protested against this match. बट आई थिंक दिस मैच विल हैपन. वो लोग बोले थे कि हम तालिबान के अगेंस्ट हैं, ये ओके. जो उनको वुमेन एम्पावरमेंट नहीं मिल रहा है, हम्म. वुमेन प्लेयर्स नहीं खेल रहे हैं. सेम इशू ऑस्ट्रेलिया ने भी पहले रेज किया था. सो दे आर नॉट गोइंग टू प्ले एनी बायलैटरल सीरीज. बट क्योंकि यहाँ पे ये एक आईसीसी इवेंट है और ये आईसीसी का टूर्नामेंट है, सो दे आर गोइंग टू गो अहेड विद दिस मैच. या आई थिंक दे शुड फायर अप अफगानिस्तान. सो हाँ, बट फायर अप तो ठीक है, बट दिस इज अ मस्ट विन गेम. आई डोंट नो अबाउट द पॉलिटिकल एंगल, बट मस्ट विन गेम है तो भाई इट शुड एनीवे फायर अप फर्स्ट बोथ विन द तो टीम. दोनों के लिए है वैसे. दोनों के लिए मस्ट विन है. या But हाँ, before that, I एब्सोल्युटली. want to ask Pratik. I still a diehard supporter of Afghanistan. या I still डेफिनेटली. have high hopes from them.
I am, but unfortunately today I'm not picking them as my prediction. Kunal, Pratik has actually converted from Afghanistan fan to an England fan No, no, in the duration that you did not join. He's no become way. more of an England fan now. So that's why he's picking his favorite England again. No, I was very Yeah. disappointed the way Afghanistani batters batted against South African bowlers. Even Vian Mulder का bouncer they were not able to face. तो इसके लिए मैंने आज सिर्फ predict किया है. But I'm very Hmm. happy that my passion has rubbed on to other group members, even though I might have lost some passion. 38% Afghanistan. I'm very happy to see this, and I certainly Yeah. didn't predict this when I was not voting for them. So yeah, We're very talking proud more of about them. England, England, right? I mean, yeah, England has been a side who, won 2 World Cups in the last 4-5 years, right? उसके बाद से तो उनका ऐसे डाउनवर्ड चल रहा है कि पता नहीं, people are questioning Josh Butler's captaincy and everything else. So this can be pivotal for Josh Butler as well if England actually does not do well in the whole tournament. We might see at least leadership changes in England team. इंग्लैंड बहुत खराब हो गया, राइट? नोबडी एक्सपेक्टेड टू डू दिस बैड जैसे उन्होंने इंडिया में किया है, उसके पहले वो सीरीज हारे. Yeah, So we have, they're so under I rock think bottom. England would also be raring to go. And I think there is something about Root also coming in, right? Root को लोग काफी टाइम तक ओडीआई पे भी नहीं खिला रहे थे, Yeah, अचानक से वही वापस आ गया. yeah, because Stokes चला गया, So Bairstow चला गया, so some experience is needed. I think England has Actually, more at stake. Hmm. hmm. पता है कुणाल, एक्चुअली मुझे क्या लगता है, इंग्लैंड वेंट द पाकिस्तान रूट कि वन डायमेंशनल थिंकिंग जो होता है ना कि पेस हाँ, इज पेस. हम 150 प्लस बॉलर्स लेके आएंगे, सारे मैचेस जीत जाएंगे. ब्रेंडन मैकलम है भी एग्रेसिव कोच, तो वो आया वाइड बॉल सेटअप में. पहले मैथ्यू मॉट था उनका कोच, तो कुछ ज्यादा स्पिनर्स हम देखते थे, कुछ ज्यादा वैरायटी हम देखते थे. लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि जब से ब्रेंडन मैकलम आया तो इट्स बीन वन डायमेंशनल कि भाई हम पेस इज पेस यार. वही and वही वाली strike बात rate हो is a गई है strike rate. कि पेस इज. Batting. स्ट्राइक रेट फिर भी ठीक है, चलो. दे दे मैनेज देयर अप्रोच. मतलब बेन डकेट ने तो ऑनेस्टली मैं बोलूं तो बहुत स्लो मैच. मतलब हर्षल गिब्स ने भी लिखा है कि आप 140 बॉल्स खेल के 165 That's आप मार रहे हो, that's तो the आपने बहुत ही I, बेकार इनिंग्स खेली है. हर्षल I गिब्स ने agree तो with that. ब्रीच कीप पे भी That's the अटैक reason कर England lost because of Ben Duckett. दिया. अरे इंग्लैंड में क्या चेंज है? 4 साल पहले हम लोग क्या बोलते थे कि इंग्लैंड इज शोइंग द वर्ल्ड हाउ टू प्ले ओडीआई क्रिकेट, हाउ टू प्ले टी Yeah. ट्वेंटी क्रिकेट, लेकिन उसके बाद से तो नाउ इट्स लाइक दे आर द टीम एवरीवन वांट्स टू बीट. And Kunal, you can see there is सो no आई votes for Josh Butler, only Root, some votes for Salt, which is I'm surprised because he hasn't done anything, and then some votes for Duckett. And from Afghanistan, I'm only सरप्राइज Baz. Hmm. सरप्राइज नो वर्ड्स फॉर बटलर दो, क्योंकि इंडिया में तो अच्छा खेल रहा था बटलर. Yeah, इनफैक्ट ही no. लुक टू बी द ओनली गाय हु Because गेट there is सम a टच. reason. There is a reason actually. Butler has a very poor record in IPL. I don't know about international cricket. He has a very poor record versus Rashid Khan. He struggles a lot versus Rashid Khan. Yeah. That may be the reason that everyone has not voted for Butler. Plus ऊपर से मे वो बी. बहुत नीचे आ रहा है बैटिंग करने. जब हम्म तक मतलब ब्रूक और ये सारे चीज मतलब ये लोग सब मैच बिगाड़ चुके हैं, तो उस समय वो आ रहा है बैटिंग करने. उसके वजह से वो स्ट्रगल कर रहा है, क्योंकि उसको वो जब आ रहा है तब उसको टेम्पो हाई टेम्पो से खेलना होता है. एंड ही इज नॉट बीन एबल टू डू दैट सिंस. जॉस बटलर का प्रॉब्लम 2023 आईपीएल से ही शुरू हो गया. ऑल्दो ही वाज द ऑरेंज कैप विनर ऑफ दैट आईपीएल, वो उसका इशू उस आईपीएल से ही शुरू हो गया था. ही started taking it very tentative cricket. He started playing very tentative cricket. लास्ट में जाके वो रहता था तो वहाँ एक्सेलरेट कर पाता था. बट Hmm. यहाँ पे वो ओपन नहीं कर रहा है. यहाँ पे वो आ रहा है मिडिल ओवर्स में, 30 to 40 ओवर्स के बीच में आ रहा है बटलर. जहाँ पे वो गेम एबी डिविलियर्स और मैक्सवेल और क्लासन जो गेम खेलते हैं वो जॉस बटलर नहीं खेल पा रहा है, जो कि वो पहले खेल लेता था. Yeah. अब वो हाँ, नहीं, वो वो पहले उसमें वो बात डेब्यू होगी. वही. And Crick So Buzz when ने debut किया था, then he used criticize to भी be a किया finisher. था. उसके बाद he became an opener. Now he's coming to middle order. Maybe he's also confused. एंड क्रिक बज़ ने ये भी क्रिटिसाइज किया राशिद या खान को भी और बटलर को भी कि दोनों बहुत बड़े मैच विनर्स हैं, बट ओडीआई सॉरी आईसीसी टूर्नामेंट्स में दोनों का एवरेज बहुत खराब है. बटलर का सिर्फ 25 है एंड राशिद खान का बॉलिंग एवरेज 50 है. सो बोथ या बोथ आर नीडेड टुडे. यार एंड राशिद खान के लिए मैं एक चीज बोलूं यार, पता नहीं उसका क्या इफेक्टिवनेस कम हो गया है, क्योंकि उसका गुगली सब सब इजीली पिक कर रहे हैं. मतलब वो He's मैजिक रहा lost ही his नहीं है. charm. He's lost his आई streak. वुड मतलब नॉट से बिकॉज सबने जस्ट अभी बहुत देख रिसेंट लिया, राइट? बहुत ज्यादा. बट रिसेंट वर्ल्ड कप में वेस्ट इंडीज में बहुत छा गया था राशिद खान. सो आई वोंट से दैट. नहीं नहीं, मैं एक चीज बोलता हूँ आकाश. मेरा ये पॉइंट है कि 20 ओवर फॉर्मेट में राशिद खान इज डिफरेंट और 50 हम्म ओवर में इज डिफरेंट.
20 ओवर फॉर्मेट में क्या है कि उसको बस 24 बॉल्स मैनेज करना है एंड ही हैज करेक्ट टू बॉल करेक्ट डॉट बॉल्स। यहाँ पे क्या है कि अगर आप राशिद खान के 10 ओवर खेल भी ले रहे हो तो यू हैव अदर बॉलर्स, वीक बॉलर्स ऑफ अफगानिस्तान। जो लास्ट टाइम हुआ, फजल फारूकी वाज टेकन अपार्ट बाय अफगान साउथ अफ्रीकन्स। या दे मैनेज टू प्ले राशिद खान वेल एंड उसके बाद उनको पता था कि इनको हम सेफली निकाल भी ले तो फजल फारूकी को मारेंगे। और दूसरा चीज क्या है कि अनफॉर्चुनेटली दे आर प्लेइंग इन लाहौर, जहाँ पे पिच काफी थोड़ा फ्लैट है। देयर इज नॉट मच टर्न, मतलब इट्स अ नॉर्मल एंड वेरी गुड हाईएस्ट स्कोरिंग बैटिंग ग्राउंड, द पिच। एवरेज स्कोर इज 300। यस यस एंड राशिद खान इज ए फिंगर स्पिनर, तो वहां पे चेंज आ जाता है। नॉर्मली करेक्ट। लेग स्पिनर हम रिस्ट स्पिनर देखते हैं तो वो इफेक्टिव होते हैं फ्लैट सरफेस में भी, बट राशिद खान इज ए फिंगर स्पिनर। एंड बट स्टिल बॉलिंग में अगर आप देखोगे तो प्रेडिक्शन इक्वल है, 3 अफगानिस्तानी बॉलर्स पिक किए हैं मेंबर्स ने और 3 इंग्लिश। एंड पेस को काफी लिया है, वुड एंड जोफ्रा का वोट्स देख के मुझे काफी अच्छा लग रहा है। सो आई वांट टू आस्क शिखर एंड आकाश, व्हाई डिड यू वोट फॉर अफगानिस्तान टुडे? यार मैं तो यार टूर्नामेंट इंटरेस्टिंग तभी होगा जब अफगानिस्तान जीतेगा। सही बात। और दूसरा चीज ये है कि यार इंग्लैंड ना लॉस 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 होके आ रहा है। पहले तो इंडिया ने उनका पूरा ही हरा हरा के वर्ल्ड कप से, मतलब डाल कर चैंपियंस दिया। ट्रॉफी से पहले एकदम हरा के भेजा। उसके बाद वहां पे ऑस्ट्रेलिया ने उनको जिस तरीके से, जिस टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को हरा दिया ना, इंग्लैंड का कॉन्फिडेंस तो अलग ही लेवल पे डाउन होगा। करेक्ट। दूसरा चीज, इंग्लिश कैप्टन इज क्लूलेस मैन। वो नहीं समझ आ रहा है उसको, या मतलब इंग्लिश स्माइल करता कैप्टन इज रहता है बॉलर्स जब क्लूलेस। पिट रहे होते हैं तो, कभी बात भी नहीं हाँ, करता उनसे जाके। कुछ नहीं पता नहीं। और अफगानिस्तान फायर अप होके भी आएगी कि, और इंग्लैंड वाज द टीम राइट चैंपियंस ट्रॉफी में जहां से अफगानिस्तान की गुड जर्नी शुरू हुई थी। ओडीआई वर्ल्ड कप में, यस करेक्ट। Right. ओडीआई वर्ल्ड कप में, Yes, yes. सॉरी ओडीआई वर्ल्ड कप में, या तो इट वाज इंग्लैंड, या इंग्लैंड के खिलाफ वो एक अपर हैंड भी रहेगा कि अफगानिस्तान वुड बी मॉरली हाई कि अफगानिस्तान आई थिंक वन 3 इन अ रो, राइट? इंग्लैंड, पाकिस्तान एंड देन द स्टार्ट वाज इंग्लैंड राइट। या नहीं, एंड मैंने तो अफगानिस्तान प्रेडिक्ट किया है, बट अभी मुझे लग रहा है एक्चुअली इन हाइंडसाइट, अभी मैं ड्रीम 11 टीम बना रहा था तो मुझे थोड़ा इंग्लैंड ही लग रहा है, क्योंकि पेस विल बी डिफिकल्ट फॉर अफगानिस्तान टू प्ले। बट वही है, अफगानिस्तान जज्बा है भाई, जज्बा अगर आज वो लेके आते हैं और वो ग्राउंड में ये जज्बा लेके आते हैं कि हमें जीतना है, और थोड़ा उनके वो आग लगी हो कि भाई आज हमें जीतना है और इतने पॉलिटिकल भी जो चीजें चल रही हैं हमें इसका जवाब देना है, तो भाई आज इट कैन बी अ ग्रेट मैच, बिकॉज आई रियली थिंक दीज आर टीम ऑफ इक्वल्स, पेस अटैक। और दूसरा चीज है, अफगानिस्तान एक्चुअली जहां पे पीछे हो रहा है ना, वो है पेस अटैक। मतलब कि फजल हक फारूकी भाई नहीं है आपका डेथ बॉलर यार। दैट इज माय कंसर्न आप शिखर, क्यों नहीं समझ रहे हो कि फजल हक नहीं है आपका? बिकॉज ईएसपीएन क्रिक इन्फो और हम्म। क्रिकबस दोनों ने प्रेडिक्ट किया कि अफगानिस्तान सेम 11 खिलाएगी। तो भाई अगर ऐसा होने वाला है तो दैट्स वेरी बैड न्यूज, बिकॉज मुझे लगता है अभी अटल को ड्रॉप करना हम्म। पड़ेगा एंड सबको एक एक ऑर्डर में अप करना पड़ेगा। एंड देन आई वुड से फजल हक की जगह आप एक दूसरा पेसर खिलाओ, फरीद, जिसको थोड़ा स्लो बॉल डालना आता है, एंड ऑल्सो खरोटे कैन बी ट्राइड। मेरा तो ये रिकमेंडेशन रहेगा। बट खरोटे इस पिच में क्या हम्म। लाएगा यार, कुछ हम्म। नहीं लाएगा इस पिच पे। या नहीं। It लाहौर is a flat रहमत track फोर after all. इज नॉट गुड, एंड खरोटे इज अ डिसेंट बैटर ऑल्सो, लाइक ही इज अ bowling all-rounder, but he can, I mean, I don't know, Akash, like how will, like Rahmat देख, should play at 3. एक चीज लाएगा खरोटे, एक चीज लाएगा खरोटे, वो है कंट्रोल। क्योंकि अभी जो हो रहा है, दे आर स्कोरिंग इजीली, मतलब अगेंस्ट अफगानिस्तान स्कोरिंग इजी हो रहा है। क्योंकि अगर आप देखो कि रैसी वैंडर डूसन जैसा बैट्समैन अगर मिडिल ओवर्स में आके मतलब कि रना बॉल खेल रहे हैं, जहां पे आपके मार्करम और बवुमा रना बॉल नहीं खेल रहे थे, ओके, रायन रिकल्टन ने रना बॉल खेला, तो आपको थोड़ा कंट्रोल चाहिए अपने बॉलिंग में, विच आई फील कि खरोटे इस पिच में ला सकता है। जो कि मुझे फजल हक फारूकी में नहीं दिख रहा। फजल हक फारूकी वहां पे जहां पे स्विंगिंग कंडीशंस है, थोड़ा कुछ पेसर्स के लिए है, वहां पे ही इज अ वेरी गुड बॉलर, बट वो खेलेगा, मुझे लगता है फजल हक को ड्रॉप नहीं करेंगे प्रतीक, ही विल प्ले Yeah. डेफिनेटली। I think two बट paces जा सकती है डेथ अफगानिस्तान आज। बॉलिंग, हम्म। टू पेसर्स, दे मे गो फॉर टू पेसर्स, मुझे भी यही लगता है कि टू पेसर्स। बट वही है ना, उनको लगता है गुलबदीन नायब और उमर जाई हमारे सेकंड और थर्ड पेसर हैं, तो हमें तो कोई जरूरत ही नहीं है खिलाने की, उनको हम्म। वही लगता है ना। बट तो
इसीलिए वो नहीं खेलेंगे, बट वो चीज नहीं है। गुलबदीन और ये अजमतुल्ला डेथ बॉलिंग नहीं कर सकते। यू हैव टू रियलाइज दैट। नूर ही आपका डेथ बॉलर है। आप देखो उस दिन भी करेक्ट। नूर ही डेथ बॉलिंग किया और यार आज नूर का भी भी काफी नूर ही करेगा। क्रिटिसाइजमेंट हो रहा था, कहा जा रहा था कि नूर की जगह हाफ फिट मुजीब रहमान को खिला देना चाहिए, तो वो भी हो सकता है। और इंग्लैंड के बस 11 में एक फोर्स चेंज है, ओवरटन आ रहा है कार्स की जगह बिकॉज कार्स हैज बीन रूल्ड आउट, एंड इंग्लैंड विल परसिस्ट विद जेमी स्मिथ एट नंबर 3 व्हिच इज आल्सो वेरी शॉकिंग। नहीं, जेमी स्मिथ इज अ गुड प्लेयर। मतलब कि दैट इज अ गुड प्लेयर, बट हाँ, इतना कोई ग्रेट प्लेयर नहीं है और जितना तूने बनाया हुआ है उसको। मतलब तूने तो यार ऐसा और कोई जेमी है भी स्मिथ नहीं जेमी स्मिथ इंग्लैंड के भाई पास। नंबर 3 तो इंग्लैंड ने बनाया है, मैंने तो सिर्फ 11 में लेने का था। भाई प्रतीक, तूने जेमी स्मिथ को जितना हाइप किया था, ऐसा लग रहा था वो स्टीव स्मिथ का ही दूसरा जन्म ले लिया है जेमी स्मिथ ने। लेकिन यार ठीक हैरी है। ब्रो को नंबर 3 दे दो यार, मतलब क्या मजाक चल रहा है क्या? एब्सोल्युटली, मैं तो बोल रहा हूँ आज हैरी ब्रुक एक बड़ा 100 मारना चाहिए यार। ही इज सच अ गुड प्लेयर इन लाहौर। लाहौर। आई नो चैंपियंस ट्रॉफी इज नॉट नोन फॉर क्लोज गेम्स, बट मेरा भी सेम प्रेडिक्शन है, लाइक मैच बहुत क्लोज होगा, बट मुझे लग रहा है हार्ट ब्रेक होगा लास्ट में, बट मैच क्लोज होगा। मुझे तो लग रहा है इंग्लैंड जीत जाएगी। अफगानिस्तान डोंट हैव इट टू टेक इट। बट इंग्लैंड और जीत बहुत दूर दूर है, दो दो चीजें तो विल हैव टू Yeah, सी। so maybe that does make things interesting. आकाश, यू प्रेडिक्टेड अफगानिस्तान बट यू आर आल्सो सेइंग इट विल बी अ क्लोज मैच। या इट विल डेफिनेटली बी अ क्लोज मैच। मतलब मैंने तो बस इसीलिए प्रेडिक्ट किया, मेरे को ऐसा लगा कि भाई अभी तक इस चैंपियंस ट्रॉफी में कुछ एक्साइटिंग ज्यादा हुआ नहीं है। हाँ यही है जहां पे एक्साइटमेंट आएगी। मतलब देयर शुड बी हाँ, एक दिन तो ऐसा आएगा ना जब ऑड्स जिसके खिलाफ है वो जीतेगा। या बट दैट वुड बी अफगानिस्तान हैज टुडे। टू स्कोर क्लोज टू 300, यू नो, लाइक इंग्लैंड को भी प्रेशर में डालना यार पड़ेगा। 300 नहीं, थ्री you हंड्रेड में need तो एक कुछ 320 नहीं होगा प्लस यार, फिर 300 में तो कुछ नहीं होगा लाहौर में इस पिच 300 में पे। क्या होगा? 300 में कुछ नहीं होगा। हम्म। सो हु आर यू अब तो पिकिंग बता। एज अ बैटर? आई एम पिकिंग भाई कि अफगानिस्तान में गुरबाज वुड बी द वन। मतलब गुरबाज अगर बहुत अच्छा खेल गया ना यहाँ पे गुरबाज, क्योंकि गुरबाज एक बार वो आ जाता है ना अपने मूड में और अपने जोन में, तो फिर वो वहां से एक्सेलरेट होता है वो। Since 2023, Gurbaz has 5 ODI 100, so yes, he's the man for the job. Absolutely. भाई आज अगर अफगानिस्तान को 320, जैसे कुणाल और आकाश बोल रहे हैं कि थ्री Hmm. ट्वेंटी अगर बनाना है अफगानिस्तान को, तो गुरबाज ही को 100 हाँ मारना पड़ेगा। और नेक्स्ट है रहमत शाह, शुड बी नंबर 3, और ही हैज टू आल्सो प्ले लॉन्ग इनिंग्स, और Hmm. इब्राहिम जदरान हैज टू प्ले लॉन्ग इनिंग्स। तब जाके कहीं ना कहीं तुम्हें नाबी और राशिद से वो फिनिशिंग मिलेगी, गुलबदीन हाँ। नाबी और राशिद से। और ये रहमत और शाहिदी भाई एक साथ एक के बाद एक आना बहुत ही गलत डिसीजन होता है अफगानिस्तान के लिए। तो पता है यार। वो बहुत टॉर्चर होता है, बट उसी के से उन्होंने हराया था लास्ट वर्ल्ड कप पाकिस्तान और इसको हाँ इंग्लैंड को। सो दे हैव टू समहाउ, मतलब कि फर्स्ट दे हैव टू बैट फर्स्ट। पहले तो मैं बोलूंगा अफगानिस्तान हैव टू बैट फर्स्ट, क्योंकि नहीं है बॉलिंग फर्स्ट में उनका वो जज्बा नहीं रहता जितना उनका बैटिंग फर्स्ट। जब रन्स ऑन द बोर्ड होता है ना, तो अफगानिस्तान टीम के पास वो जज्बा आ जाता है कि भाई वी हैव टू डिफेंड इट। और तब इनके स्पिन बॉलर्स 10 टाइम्स इफेक्टिव हो जाते हैं। मैंने यही देखा है, जैसे इंग्लैंड को इन्होंने दिल्ली में जो हराया था, इफ यू सी दैट मैच, मतलब कि नॉर्मल टोटल दिया था 270। अफगानिस्तान ने 280 का। हाँ, 280 का। उसके बाद पूरे स्पिन अटैक मतलब जोश में आ गई कि भाई अब कैसे भी करेक्ट। डिफेंड करना है। Hmm. यार वो लेकिन चीज एक चीज शिखर, एक चीज तो ये भी जानना है ना कि अफगानिस्तान को इंडिया में वर्ल्ड कप के दौरान बहुत ही फेवरेबल पिचेस मिले थे। हाँ, स्टार्ट ही चेन्नई में किया था। Hmm. हाँ चेन्नई से स्टार्ट किया, देन दिल्ली वाला पिच भी उनका स्पिनिंग ट्रैक था, तो उनको इतना हाँ फेवरेबल पिचेस मिला था इंडिया में, तो उसके वजह से हम्म दे वेंट वेरी फार हेड। मतलब वो मैचेस और जीते। और क्लाउडी हम्म कंडीशंस में ये ड्यू और भी ज्यादा होगा ना, बिकॉज फुल क्लाउडी है आज वहां पे। नहीं, क्लाउडी में ड्यू कम होगा ना ओके प्रतीक। ओके, देन दैट्स अ गुड थिंग, दैट्स क्लाउडी में ड्यू नहीं होता है। ओके, क्लाउडी नहीं होने से ड्यू होगा। देन दैट्स गुड, देन अफगानिस्तान शुड डेफिनेटली हाँ बैट फर्स्ट पोस्ट 300। और दूसरा चीज, अगर कोई शॉर्टेंड मैच हुआ और बारिश हो गई, तो आई हम्म। थिंक इंग्लैंड डेफिनेटली एडवांटेज में ओ या रहेगा। वो तो मतलब है, कि वो तो है, वो तो ह्यूज वो एडवांटेज। शॉर्टेंड यार, मैच में। बट अगर इतना शॉर्ट हो गया कि T20 हो गया, तो फिर मैं तो अफगानिस्तान को ही रखूंगा उसमें। हाँ टी हाँ। ट्वेंटी में T20 तो में वो अलग would ही also टीम है, वो give अलग it to टीम हो जाती है। Afghanistan. Yeah. हम्म। हाँ यार लेकिन ऐसे वेदर रेन की प्रेडिक्शंस है नहीं, तो that might हाँ। not be.
तो वाओ, शिखर ने जेमी स्मिथ को आज कैप्टन विकेट कीपर बनाया, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग शिखर। एंड हैरी ब्रूक को कैप्टन, वाओ। सो मैं एक्चुअली अपने फैंस को बोलने वाला था कि आज मैंने थोड़ा रैंडम बनाया, बट शिखर का लाइनअप देख के तो मैं थोड़ा शॉक में But हूँ। I आज may मैच I मैच भी may ऐसा है। change. लिविंगस्टन भी But लिया। I may change because अब मुझे थोड़ा अफगानिस्तान प्लेस को लेने का मन कर रहा है, तो I may change. But this is what I initially thought अभी बनाते वक्त. But yeah, let's see. लिविंगस्टोन भी लिया दोनों है, के सो बॉलर्स बिल्कुल सेम है। लुक एट द बॉलर्स, दोनों के बिल्कुल सेम। या मुझे लग रहा है कि विकेट्स तो गिरेंगे आज, तो मैंने इसलिए बॉलर हैवी रखा है। एंड या हमारे ऑलराउंडर्स भी थोड़े बहुत सेम है। नाबी, ही डजंट हैव नाबी, एंड रहमत शाह दोनों ने लिया है, एंड डकेट दोनों ने लिया है, बिकॉज डकेट इज इन हॉट फॉर्म। या बट लेट्स सी कैसा रहता है आज का मैच। आई एम रियली होपिंग, ये तो पक्का है आज तो क्लोज मैच होगा ही होगा। जस्ट डोंट नो विच वे इट विल गो, बट क्लोज मैच होगा आज। चैंपियंस ट्रॉफी का कर्ज आज टूटेगा, शिखर। और गाइस, एनी I फाइनल really थॉट्स? hope so. I really hope so. क्योंकि इतना डेड एंड बोरिंग टूर्नामेंट रहा है अभी तक, तो I really hope it's a good match, man. क्योंकि except for Australia, no one has given the मतलब tournament anything to talk about. बोरिंग मैचेस, बोरिंग डजंट हेल्प द टूर्नामेंट। ऑलरेडी ये टूर्नामेंट पे इतने क्वेश्चन मार्क है कि क्यों ये टूर्नामेंट बीच में आता है। ओडीआई वर्ल्ड कप ऑलरेडी 4 साल में हो रहे, तो अब एसिड मैचेस होंगे तो आई डोंट थिंक मतलब कि एनीवन विल लाइक। एंड पाकिस्तान का वेदर भी मतलब कि यार फरवरी में बारिश हो रही है। कल एक इंटरेस्टिंग मैच हो सकता था, मतलब कल एक सुपर मैच हो सकता था, टू बी ऑनेस्ट। मतलब इट कुड हैव बीन द बेस्ट मैच ऑफ द टूर्नामेंट, और वही मैच में बारिश हो गई। तुम बारिश करवा देते ना वो इंडिया बांग्लादेश में या किसी में, वो सारे मैचेस में बारिश करवा देते यार, तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। बट न्यूजीलैंड अब बांग्लादेश में, बट ये मैच में बारिश हो गई यार, जो कि सबसे बेस्ट मैच होने वाला था। अगर दैट्स फिर वेरी बारिश हुई तो डिसअपॉइंटिंग। आईपीएल प्रीव्यूज चालू कर देंगे। दैट विल बी मोर इंटरेस्टिंग। बहुत बोरिंग है। चलो यार, लेकिन लेट्स पता फॉर नहीं द कि मुझको नहीं क्रैकर्स। लग रहा कि मैच क्लोज होगा। हम्म। आई विल से कि इंग्लैंड विल विन। ऑल द वे। थोड़ा फाइट देखिए पहले, लेकिन इंग्लैंड जीत जाए। चलो, लेट्स सी गाइस, एंड होपफुली आई विल सी यू सम ऑफ यू पोस्ट मैच एज वेल। थैंक यू फॉर joining क्रिकेट कैवियर वीडियो टुडे, एंड प्लीज सब्सक्राइब गाइस। थैंक यू।